बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बाइनामियल थ्योरम से मुताल्लिक़। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज़ टू द पावर 6. Here we have a binomial expression with the exponent 6 as a natural number. We know that general term of expansion a plus b power n is. For this binomial expression, the general term is equal to tr plus 1 ncr a power n minus r b power r. For this binomial expression, this is the general term formula. Now the given question is x square minus y raised to the power 6. Here the exponent n, this is n, and in the given question the exponent is 6. First term a is equal to x square, second term b is equal to minus y. Putting these values in this formula, so we see the putting here 6 cr is equal to, by formula 6 pictorial divided by r pictorial, 6 minus r pictorial. For a we put x square, so x square raised to the power 6 minus r. Similarly for b, for this b we will put minus y raised to the power r. अब यहाँ पे for this this is the formula, and multiplying this power with 6 minus r we will get 12 minus 2r. 12 minus 2r, this is power of a power. In a power of a power we will multiply both the exponent, and this is the simplification. This minus 1 raised to the power r will be here, this y raised to the power r will be here. Now simplifying, 2 6 are 12, 2 into minus r is equal to minus 2r. This minus 1 raised to the power r will be here, this y raised to the power r is here. So this is this expression tr plus 1 is equal to this one represent the general term, that is the r plus 1 term for this binomial expression whose exponent is equal to 6. For this binomial expression, this one represents the r plus 1 term, that is the general term. Given expression is this one. This is a binomial expression with exponent 15, which is a natural number. We know that the general term formula tr plus 1 is equal to 15. This 15 will be here, 15 cr. This will be a raised to the power 15 minus r. This is a. Similarly, this is b. So minus b power, b power r. Now simplifying, 15 cr. This minus 1 raised to the power r here. This 3 raised to the power 15 minus r here. This 2 raised to the power 15 minus r. अब ये 2 जब हम ऊपर ले जाते हैं तो 2 पावर 15 माइनस आर, ये चेंज होगा 2 पावर आर माइनस 15. अब इसके अलावा आर माइनस 15, ये एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 15 दूनी 30 माइनस 2r. यहाँ एक्स नीचे है, एक्स पावर आर है. जब ये ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस आर, तो माइनस 2r यहाँ पे है और x माइनस r इसी से होगा. तो हमें x का जो एक्सपोनेंट है 15 दूनी 30 माइनस 2r, और यहाँ माइनस r है तो माइनस 3r बनेगा. फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अब ये एक जनरल टर्म है. नाउ दिस इज द जनरल टर्म, एंड वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस जनरल टर्म a term which is independent of x, that is that term, the required term will do not have x. So putting 30 minus 3r, putting this 30 minus 3r is equal to 0, and finding value of r, this is value of r. Now putting this value of r in this equation, we will get 10 plus 1 11 टर्म. यहाँ पे r की जगह हम 10 पुट करेंगे, माइनस r रेस टू द पावर 10. तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस 1 होगा, ख़त्म हो जाएगा. 3 पावर 15 माइनस 20, 15 माइनस 2r, जबकि r 10 है. तो ये 15 माइनस 20, तो ये -5 आएगा.
और 2 पावर 10 माइनस 15, तो ये -5 आएगा और x पावर ये 0 होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये ख़त्म हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, ये अपनी जगह पे है और ये 3 पावर -5 है, 2 पावर -5, तो इन दोनों को जब हम नीचे ले आएंगे 3 पावर +5, 2 पावर +5, दैट इज़ 6 पावर 5, यहाँ पे 6 पावर 5, 1/6 पावर 5, तो 11 टर्म एक ऐसा टर्म है, इसी को जब हम एक्सपेंड करते हैं, व्हेन वी एक्सपेंड दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन वी गेट 16 टर्म्स। इन द 16 टर्म this 11 term is a term which do not have x, it is independent of x. So in the exam paper, a question of this type can be asked from the student. यहाँ पे एक ऐसा टर्म हमने मालूम किया जिसमें x नहीं था, तो x को ख़त्म करने के लिए हमने इसी x के इसी पावर को 0 लिया और r मालूम किया। r को जब हमने यहाँ पे पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो एक ऐसा टर्म मिला जिसमें x नहीं है। Now we have another question. This is the general term formula. This is value of a, this is value of b. Simplifying 12cr 2 power 12 minus r. Similarly x power बार दोनों 24 minus 2r, यहाँ पे -1 पावर r, तो यही है x पावर r, और जब इसको हम ऊपर ले जाते तो x पावर -r। अब यहाँ x है, यहाँ x है, एडिंग एक्सपोनेंट, तो यहाँ बनेगा x पावर 24 माइनस 3r और -1 पावर r यहाँ पे है, 12 पावर 12 माइनस r यहाँ पे है, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इसी जनरल टर्म से x को ख़त्म करना है, तो x को ख़त्म करने के लिए 24 माइनस 3r को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से हम r मालूम करेंगे, यहाँ से हम r मालूम करेंगे और इसी r को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 8, तो 8 + 1 ये हमें देगा 9 टर्म। तो 9 टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं होगा, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो हम क्या करेंगे, r + 1, 8 + 1 t9 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 पावर 8, तो ये +1 होगा, ये ख़त्म हो गया, 12c8, तो 12c8 आ गया, -1 पावर 8 यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे 2 पावर 12 माइनस 8 यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे x पावर 0, तो ये 1 हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसी को मुख्तसर करना है, इसके लिए फार्मूले की मदद से फार्मूला यहाँ पे लिखा और 12 माइनस 8 से 4 आता है, -1 पावर 8 ख़त्म होगा, प्लस होगा। अब यहाँ इन तमाम वैल्यू को एक्सपेंड करना है, 2 पावर 4 16 है। अब कुछ कैलकुलेशन के बाद 7920, दिस इज़ द 9 टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन which is independent of x. This binomial expression have 13 terms. The 9 term is 7920, which do not have x, that is it is independent of x. Another question, this is another question. This is the general term formula. This is bar a, value of a has been substituted here, the value of b is here. नाउ सिंप्लीफाइंग, तो इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x पावर 60 माइनस 7r, तो हमने क्या करना है, x पावर -17, वी हैव टू डिटरमिन अ टर्म हैविंग x पावर -17। हमें एक ऐसा टर्म मालूम करना है जिसमें x पावर -17 हो। तो x पावर -17 मालूम करने के लिए हमने इसी पावर को, इसी एक्सपोनेंट को -17 के बराबर लेना है और इसी से हमने r की वैल्यू मालूम करना है। r की वैल्यू जब हमें मालूम हुआ तो इसको हमने यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करना है। तो 11 + 1 ये 12 टर्म बनेगा और यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, तो ये पुटिंग है,
अब वो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -17, यहाँ 60 से अगर 77 हम माइनस करें तो x पावर 17 बनता है, -17 बनता है। तो x पावर -17 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 15c11 है और -1 पावर 11 है। तो -1 पावर 11 हमें माइनस देगा और 15c11 हमें ये रिजल्ट देगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 15 हम शुरू करते हैं 15, 14, 13, 12, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल तक हमने स्टॉप किया, क्योंकि ये जो 11 है ये 11 फैक्टोरियल के तौर पर हम लिखते हैं। 15 से जब हम 11 माइनस करते हैं तो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिखा है 4, 3, 2, 1। अब ये 11 और ये 11 आपस में कैंसिल होंगे। यहाँ जो 4 फैक्टर है और यहाँ जो 4 फैक्टर है, सिंप्लीफिकेशन हमें ये देता है। दिस इज दी आंसर, दिस इज दी ये r इक्वल 11 है। सो दिस इज दी 12th term, this is the 12th term in the expansion of this binomial expression, where the exponent of x will be -17. Another question, here we have a general term formula. This is value of a, this is value of b. This is the simplification for this term to contain x power -15. अब वो यहाँ से एक ऐसा टर्म मालूम करना है जिसमें x पावर -15 हो। तो x पावर -15 हासिल करने के लिए हमने इसी एक्सपोनेंट को -15 के बराबर इक्वेट करना है। -2 और -3 = -5r, इसी को हमने बराबर रखना है -15 का। और यहाँ से हमने मालूम करना है वैल्यू ऑफ r। वैल्यू ऑफ r क्या है, 7। अब इसी 7 को यहाँ पे 7 + 1 8 टर्म बनेगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे -15 होगा, ये जो -15 है। तो अगर r की वैल्यू 7 हम यहाँ पुट करें तो ये -15 होगा। तो x पावर -15 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है ये इसके कोएफिशिएंट है। तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिए हैं। -1 पावर r जबकि r 7 है, 10cr जबकि r 7 है, 3 पावर 10 - 2r, r मसावी 7, तो ये 2 सते 14, तो ये 14 होगा। a पावर r जबकि r 7 है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है। दिस इज दी, देख लिए r + 1, 7 + 1, दिस इज दी वैल्यू ऑफ दी 8th term, where the exponent of x will be -15. This is the 8th term having x power -15, and that's all. Find the 5th term. Find the 5th term in the expansion of this binomial expression. First of all, we will write the general term formula. TR + 1 = NCR x power n - r a power r. Putting the values. r हमने मालूम करना है 5th term। तो 5th term मालूम करने के लिए T5 = T4 + 1, so r = 4, r = 4। तो यहाँ पे r = 4 है और ये n जो है n = 10 है, और ये जो x है ये फर्स्ट टर्म है और a की वैल्यू -3 और x² है। अब इसको यानी इसी फार्मूले में ये वैल्यूज हमने पुट किए। अब वो इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास, दिस इज द 5th term in the expansion of this binomial series, binomial expression. This binomial expression have 11 terms, where the 5th term is this one. This is a binomial expression where the exponent is 10, which is natural number. Here exponent is 10. First term of the binomial expression is x², second term is -2 or x. We have to find sixth term. We have to find sixth term. In case
To find sixth term, value of r will be equal to 5. Now taking the general term formula, this is the general term formula, putting all the values. So r is equal to 5, तो यहाँ पे हमें 5 plus 1 that is t6 देगा. n क्या है, n is equal to 10 है, तो यहाँ 10 होगा. r is equal to 5 है. a फर्स्ट टर्म is equal to x square, तो यहाँ पे आ गया. और 10 मनती 5 आ गया. सेकंड टर्म क्या है, -2 बटा x है. और यहाँ जो r है 5 है वो यहाँ पे होगा. अब वो कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस इज द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन. Sixth term of this binomial expression. This binomial expression have 11 terms. Middle term of binomial expansion. Middle term of binomial expansion, if n is even, whenever there is an even number as exponent of the binomial expression, अगर किसी binomial expression का power exponent even हो, तो फिर उसी सूरत में जो मिडिल टर्म मालूम करना होता है वो इस तरह होता है. t n over 2 plus 1 is equal to n c n over 2 x power n minus n over 2. इसी n और इसी का डिफरेंस हम यहाँ पे लगाएंगे, y के ऊपर हम n over 2 लगाएंगे. तो ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट इवन हो और उसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म मालूम करना हो, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, या हम अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ देखिए गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ एक क्वेश्चन है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपोनेंट 9 है. हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है मिडिल टर्म्स, हमने मालूम करना है मिडिल टर्म्स. तो अगर एक्सपोनेंट 9 हो तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 10 हो गए. 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 0. अब देख ले इसके 10 टर्म होंगे. मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म अगर हम इसमें देखें 10 टर्म है, तो यहाँ से ये 4 इनको हम छोड़ेंगे और यहाँ से ये, तो मिडिल टर्म 2 है. ये फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म जो है ये मिडिल टर्म है. इसी क्वेश्चन को हल करना है, इसके मिडिल टर्म मालूम करना है. तो अगर एक्सपोनेंट n आड हो तो आड्स, when exponent is odd, then we have two middle terms always. In case of odd exponent, we will always have two middle terms. The first middle term will be determined by this formula and the second by this formula. अब यहाँ पे जो fifth term है, देख लीजिए fifth term is the first middle term. इसको देखिए, इसी फार्मूले की मदद से आया ये fifth हमें मिलता है कि नहीं. फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, तो यहाँ पे n है, n plus 1 10 हो गया, 10 over 2 फिफ्थ टर्म. तो ये तो हमने कॉमन सेंस से मालूम किया, लेकिन अगर यहाँ n आड हो, सपोज 99 हो, तो 99 एक्सपोनेंट वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म्स मालूम करने के लिए हम 99 यहाँ लगाएंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो इससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे पास मतलूबा फर्स्ट मिडिल टर्म होगा. तो n plus 1 over 2 ये हमारे पास फर्स्ट मिडिल टर्म है, और n plus 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ये हमारे पास दूसरा मिडिल टर्म है. अब इसी दूसरे को मालूम करने के लिए इसी फार्मूले को आप ट्राई करें. तो 9 plus 1 over 2 5 plus 1 equal to 6. तो सिक्स्थ टर्म सेकंड मिडिल टर्म है, फिफ्थ टर्म फर्स्ट मिडिल टर्म है. इसको हमने कॉमन सेंस से मालूम किया, जबकि फार्मूले की मदद से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर एक्सपोनेंट n आड हो तो n plus 1 over 2 फर्स्ट मिडिल टर्म, n plus 1 over 2 plus 1 सेकंड मिडिल टर्म. अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म, तो मालूम हुआ कि फिफ्थ टर्म हमारे पास फर्स्ट मिडिल टर्म है. तो फार्मूला हम लिखेंगे ये वाला
4+1, इसी 4 को हम यहाँ लिखेंगे और एक्सपोनेंट को यहाँ लिखेंगे, ए को यहाँ लिखेंगे, 9 - 4 यहाँ पे, बी को यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे। अब कुछ कैलकुलेशन है, तो इस तरह ये कैलकुलेशन जब हम हल करते हैं तो दिस इज़ दी फिफ्थ टर्म, दिस इज़ दी फर्स्ट मिडिल टर्म। यहाँ पे कुल 10 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म जो फर्स्ट मिडिल टर्म है 5वां, वो यही है। अब वो जो सेक्स टर्म है, तो सेक्स टर्म ये दूसरा मिडिल टर्म है। दूसरा मिडिल टर्म मालूम करने के लिए हम सेक्स को इस तरह लिख सकते हैं, ये 5 यहाँ पे होगा, 9 - 5 यहाँ पे होगा और ये 5 यहाँ पे ऊपर होगा। अब कुछ सिम्प्लिफिकेशन है, तो ये वाला रिज़ल्ट जो हमें मिला ये सेक्स टर्म है। तो इम्तिहान में इस किस्म की भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, इसका एक्सपोनेंट आड भी हो सकता है और इवन भी हो सकते हैं। अगर आड एक्सपोनेंट हो तो इस किस्म के बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के 2 मिडिल टर्म्स होंगे। फर्स्ट मिडिल टर्म इसी फार्मूले की मदद से मालूम करना है और दूसरा मिडिल टर्म इसी फार्मूले से मालूम करना है। जब हमें मालूम हो जाए कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, इसके बाद हम जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे और इस तरह मतलूबा आंसर तक हम